Question number 7. Find the intercept cutoff by the plane. Intercept cutoff by the plane. The equation of plane is given. The equation of given plane. The equation of given plane is 2x plus y minus z equal to 5. This is the equation of given plane. Question is find the intercept cutoff by this plane. So we know that slope intercept form of plane क्या होता है बोलो. Intercept form of equation of plane. What is the intercept form of equation plane? X intercept, y intercept, z intercept. That is x upon a plus y by b plus z by c equal to 1. This is the slope intercept form of equation of plane. Here this a, b and c represents x intercept, y intercept and z intercept respectively. In short, we have to write this equation in this form. Very simple question. So now coefficient of x, y and z must be 1. So we have to divide this equation. है ना, यहाँ पर 1 चाहिए. So we have to divide this equation, given equation with 5. So it's a 2x by 5 plus y upon 5 minus z by 5 equal to 1. ये 1 तो आ गया, लेकिन but the coefficients of this x, y and z must be 1. है ना, ये भी 1, ये और ये तीनों 1 चाहिए. Here it's a 2. So we have to take this 2 into division. So therefore this one is x upon 5 by 2. Denominator of denominator is nothing but the numerator. Plus y by 5. और ये plus sign चाहिए. So it's a plus z considering this minus sign with this minus 5 equal to 1. Done. So comparing this equation with this one, we are getting x intercept, y intercept and z intercept, which are nothing but the a equal to 5 by 2, b equal to 5, b equal to 5 and this c equal to minus 5. ये आपका आंसर. We have to find the intercept cutoff by this plane. So x intercept, y intercept and z intercept. Done. Is that clear? Very good. Answer देते रहो. So now question number 8. Find the equation of plane with the intercept 3 on y axis. है ना, आपको एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है. तो डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करें ना, तो ऐसे होगा. This is our three-dimensional space. This is our x-axis, this is y-axis and this is z-axis. Now condition of plane. Find the equation of plane with the intercept 3 on y-axis. Y-axis पर 3 intercept है and our plane is parallel to ZOX. This is our reference point O. Our plane is parallel to ZOX. ना, ZOX को parallel है हमारा plane. तो कैसे आएगा प्लेन? आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा. ये जो प्लॉट है ना, वहां पर हमारा प्लेन पैरेलल है, तो पैरेलल प्लेन ऐसे होगा, है ना. ये देखो, ये प्लेन, ये जो एक्स ओ जेड या फिर जेड ओ एक्स प्लेन बोलो, वहां पर कोई इंटरसेप्ट नहीं बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ उसका इंटरसेप्ट 3 है. सो 3 इज द इंटरसेप्शन विद द वाई एक्सिस. दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस जेड ओ एक्स, है ना. ये जो पोर्शन है ना जेड ओ एक्स प्लेन, वहां पर हमारा प्लेन पैरेलल. So we have to find the equation of this plane. So from this diagram we can say x intercept, है ना, ये x intercept a होता है, y intercept b होता है और z intercept c होता है. तो x एक्सिस और z एक्सिस के साथ प्लेन का कोई इंटरसेप्शन है ही नहीं. So x interception a is 0, y intercept that is equal to 3 and z intercept that is equal to 0. Done. So what is the equation of plane? So here you can write equation of plane as a ये वाला, है ना, ये वाला यहाँ पर. इट्स x अपॉन 0 प्लस y बाई 3 प्लस z अपॉन 0 इक्वल टू 1. ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. सो यू कैन राइट y इक्वल टू 3.
y equal to 3 is the equation of this plane. Equation of this plane, that is y equal to 3. Understood? This is your question number 8. Students, are you listening? Now, question number 9. Very good. Harshita आ गई ऐसा. चलो, question number 9. नाइन्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये जो 9, 10, 11 क्वेश्चन है ना, उसमें से ही सपोज बोर्ड में क्वेश्चन लेना हो तो ले सकते हैं, है ना. क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट है. तो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 3x minus y plus 2z minus 4 equal to 0 and x plus y plus z minus 2 equal to 0 and the point 2, 2, 1. So here we have to find the equation of the plane which is passing through the intersection of two planes, है ना. तो डायग्राम ड्रॉ करें सपोज. वैसे कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है ना उसको याद याद करने के लिए हम ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ करें तो हमें फॉर्मूला जल्दी से याद आएगा. तो ऐसे दो प्लेन हमने भी कंसिडर किए थे. एक ऐसा प्लेन था, एक ऐसा प्लेन था ना. these are the two planes which are intersecting each other. So we have to find, suppose this one is our plane pi 1, this is pi 1, this is plane pi 2. Now we have to find the equation of plane which is passing through the intersection of this point. तो ये दोनों प्लेन का इंटरसेप्शन है, तो यहाँ से पास होने वाला एक प्लेन होगा. सपोज दिस इज वन प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन. दिस इज आवर प्लेन पाई 3 है ना. तो इसका इक्वेशन निकालना है. और वो जो प्लेन है वो कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है, दैट प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट. एक पॉइंट भी दिया है 2, 2, 1. So here we have to find the equation of this plane pi 3 which is passing from the intersection of these two plane pi 1 and pi 2 and 1.221. Done. तो इसका फॉर्मूला हमने दो फॉर्म में लिखा था, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में. नाउ हियर फॉर दिस क्वेश्चन और गिवन इक्वेशंस आर इन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म ना. इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई 1 क्या दिया हुआ है, इट्स 3x 3x minus y plus 2z minus 4 equal to 0. And equation of plane 2, that is pi 2, it's x plus y plus z minus 2 equal to 0. These are the equation of these two plane, है ना. pi 1 और pi 2 के इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है. कौन से फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म. So now we have to recall the formula of equation of plane that is passing through the intersection of two planes in Cartesian form. बोलो, है किसी को याद? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ the equation of required plane. The equation of required plane. बोलो हर्षिता. ऐसा था a1x plus b1y plus c1z plus d1 plus lambda a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0. डन. शायद किसी को याद आया होगा और किसी को सम करने के बाद याद आ जाएगा. डन. ये फॉर्मूला था. So here this a1x plus b1y plus c1z plus d1 is the equation of plane 1 and this is the equation of plane 2. Both are given. Put these values. Simple. So these equations are 3x minus y plus 2z minus 4 plus lambda x plus y plus z minus 2 equal to 0. This is the equation of plane which is passing through the intersection of these two planes pi 1 and pi 2. Done. But ये lambda की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो उसके लिए कंडीशन दी है. This plane is passing through this point 2, 2 and 1. Done. So this plane is passing through. This plane is passing through. This plane is passing through the point. कौन सा point है, 2, 2 and 1.
So this point will satisfy this equation. So here we can take x equal to 2, y equal to 2, and z equal to 1 in this equation. So we'll get the value of lambda. Therefore क्या होगा देखो, x equal to 2, so 3 into 2 6 minus 2 plus 2 minus 4 plus lambda x plus y plus z, 2 plus 2 plus 1, 4 plus 1 5, 5 minus 2 3 इक्वल टू 0. क्लियर. ये क्या होगा, माइनस टू प्लस टू कट 6 माइनस 4, तो ये 2 हो गया. फिर से 2 प्लस लेमडा 2 plus 3 lambda we can say equal to 0. So lambda equal to minus 2 by 3. This is the value of lambda. So put the value of lambda over here. So we are getting the equation of the plane passing through this intersection point and through this point. Done. Say this one is the equation number 1. So put in equation number 1. तो यहाँ पर lambda की वैल्यू पुट करेंगे. नहीं, ये था. डन. तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी 3x माइनस वाई प्लस 2z. देयरफॉर 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 माइनस 2/3 लेमडा की वैल्यू पुट कर दी. x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0. डन. सिंप्लीफाई इट. 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, इट्स 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12. ये माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, इट्स माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0. है ना, 3 मल्टीप्लाई हो गए, सामने जाएगा तो 0. सिंप्लीफिकेशन करो. 9x माइनस 2x 7x माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y 6z माइनस 2y 6z माइनस 2z प्लस 4z माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8. सो इट्स इक्वल टू 8 ना, सामने भी लिख सकते हो, अंदर भी लिख सकते हो. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन. This is the equation of required plane which is passing from the intersection of these given 2 points and the point 2 to 1. Is that clear students? ये समझ में आ गया सबको, है ना. ये जो सम था ना वो कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्म में था. कौन से फॉर्म में था, कार्टेशियन इक्वेशन. तो हमने ये कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेशन लिखा. अब इक्वेशन नंबर 10 है ना, वो वेक्टर फॉर्म में है. कौन से फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में. तो ये इक्वेशन में वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा और सेम प्रोसीजर करनी होगी. डन. सो लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10, same sum is there but in the vector form. Find the vector equation of the plane that passing through the intersection of the planes. Equation of two planes are given. So equation of first plane, है ना, मैं डायग्राम अभी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ. So pi 1, equation of first plane is 2i plus 2j minus 3k. है ना, केप में हर बार नहीं बोल रहा हूँ. दिस इज इक्वल टू 7. इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन. इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन, that is pi 2, that is 2i cap 2i plus 5j cap plus 3k equal to 9. So here you have to find the vector equation of the plane that is passing through the intersection of these 2 points and the point. Also our plane is passing through the point and coordinates of the point are 2 1 3. 2 1 3. Done. तो हमें दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन में से पास होने वाला प्लेन चाहिए. फॉर्मूला सबके पास होगा शायद, है ना. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर डॉट था, है ना, ये आर डॉट करके आर डॉट
Done. So if we compare this equation of plane with vector equation of plane r dot, this is n1 equal to d1, and this one is vector r dot n2 equal to d2. This is the vector equation of plane in vector form, है ना, equation of plane in vector form. So these are the normal vectors. So normal vector for the plane 1 is n1. So what is the value of n1? Or n1 will be this one, 2i plus 2j minus 3k. And normal vector of plane 2 will be n2. This one is 2i plus 5j plus 3k. Normal vector. Done. So what is the equation of plane passing through this intersection of these 2 points? So now equation of required plane मतलब हमारा जो प्लेन जो रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है? The equation of plane that is passing from the intersection of these 2 points, that is the equation of required plane. बोलो अभी किसी को याद है? वेक्टर फॉर्म में क्या था? r डॉट, और जो n1 है उसको लेमडा से कनेक्ट करेंगे, इट इज n1 प्लस लेमडा n2 इक्वल टू d1 d2 का क्या होगा? d1 प्लस लेमडा d2. दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन. डन. पुट दिस वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, ये वैल्यू पुट करो. सो देयरफॉर this will be vector r dot n1, that is 2i cap plus 2j cap minus 3k cap, है ना, n1 ये लिखा, प्लस लेमडा n2 is 2i cap plus 5j cap plus 3k cap. This is equal to this one, equal to d1 plus lambda d2. d1, this is our d1, this is our d2, है ना. d1 is 7, d2 is 9. So it's a 7 plus 9 lambda. डन. इसका सिंप्लीफिकेशन करके लिखे तो क्या होगा? सो वेक्टर r डॉट, है ना, इसका एडिशन करेंगे तो 2i प्लस ये होगा 2 lambda I. So I common, so it's a 2 plus 2 lambda. This will be 2 plus 2 lambda I plus here 2 plus 5 lambda j, 2 plus 5 lambda j cap plus minus 3 plus 3 lambda z cap equal to 7 plus 9 lambda. Is that clear? यहाँ तक. Now what we are doing, we are taking the value of this vector r. What is vector r? Vector r is the position vector of any point p. Done. Any point p is x, y, z. So position vector r is nothing but the xi plus yj cap plus zk cap. So putting the value of this r over here. तो r की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? This will be xi plus yj plus zk r dot, ये पूरा 2 plus 2 lambda I plus 5 plus 5 lambda j plus minus 3 plus 3 lambda z cap equal to 7 plus 9 lambda. ये दोनों डॉट प्रोडक्ट में है, तो डॉट प्रोडक्ट सबको आती है. कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट को? I कंपोनेंट का, j कंपोनेंट का और k कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन. डन. तो ये क्या होगा? x इंटू 2 प्लस 2 लेमडा प्लस y इंटू 5 प्लस 5 लेमडा प्लस z इंटू माइनस 3 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा. ये इक्वेशन हो गया. एंड this is the equation of plane and it is passing from which point? This equation of plane passing through, the plane is passing through the point 2 1 3. तो अभी क्या करना है आपको? We have to put x equal to 2, y equal to 1 and z equal to 3
इन दिस इक्वेशन सो वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू लेमडा की आपको इक्वेशन में पुट करनी है, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा। डन। वो आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हो तो वेक्टर फॉर्म मिलेगा, यहाँ पर पुट करो तो कार्टेशियन फॉर्म मिलेगा। इज इट क्लियर? सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 1 and 3. So put x equal to 2. So it's a 2 into 2 plus 2 lambda plus y, that is 1 into 5 plus 5 lambda plus z, that is 3 into minus 3 plus 3 lambda equal to 7 plus 9 lambda. तो ये क्या होगा? 2 2 जा 4 plus 4 lambda plus 5 plus 5 lambda, 3 3 is a minus 9 minus 9 lambda equal to 7 plus 9 lambda. Done. Simplify this. क्या होगा? 4 lambda, 5 lambda, 9 lambda cut. 4 plus 9 minus 9 0. So it's a कुछ गलती आ रही है ना, क्या होगा? हाँ, ये 2 plus 5 है तो हमने यहाँ पर 5 ले लिया है ना? ये 2 है, ये 2, तो ये 2 plus 5 lambda, ये 2, तो ये 2 होगा, तो ये 2 होगा। डन। तो अभी देखो 4 minus 3, ये minus 3 सामने जाएगा तो 10 होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 plus 9 lambda इक्वल टू 0। डन। सो वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा इज, ये minus 10 था, सो लेमडा इज 10 upon 9. दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, 10 upon 9. इज दैट क्लियर? है ना? ये 2 है यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करो अच्छी तरह से तो ये आपका आंसर आएगा, है ना? ये मैंने कर दिया है सिंप्लीफिकेशन। लेमडा इक्वल टू 10 by 9। यहाँ तक क्लियर सबको? ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन था। अभी ये वैल्यू लेमडा की यहाँ पर रखनी है, ये लेमडा और ये लेमडा को रिप्लेस करना है। डन। नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर ना? और इक्वेशन को मैं वापस लिख रहा हूँ। डन। हो गया? क्या आंसर आया? वेरी गुड, चलो डन। तो हो जाएगा सबका? तो सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है? चलो सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक और ऐसा क्वेश्चन है 11 नंबर, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, so question number 11 is find the equation of plane passing through the line of intersection of the planes x plus y plus z equal to 1 and 2x plus 3y plus 4z equal to 5, and that plane is perpendicular to another plane, that is x minus y plus z equal to 0. देखो क्या करना है इसमें, we have to find the equation of plane that is passing from the intersection of one plane and that plane is also perpendicular to some plane. डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कुछ और आइडिया आएगा आपको। ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन में पास होने वाला प्लेन है ना, ये तो हम नॉर्मल करते हैं। इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन सपोज ये है, दिस प्लेन इज पासिंग फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन, और सपोज दिस इज आवर प्लेन पाई 1, दिस इज पाई 1, दिस इज आवर प्लेन पाई 2, डन, एंड दिस इज आवर प्लेन pi 3. Now this plane pi 3 is passing from the intersection of these two plane pi 1 and pi 2, and also this plane pi 3 is perpendicular to another plane,
है ना, ये एक प्लेन से भी परपेंडिकुलर है। सपोज वो प्लेन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज वो प्लेन यहाँ पर है, सपोज दिस इज अनदर प्लेन पाई 4। डन। तो ये तीनों प्लेन से परपेंडिकुलर कंडीशन जो फुलफिल होती है, ऐसा एक प्लेन हमें ये चाहिए, ये प्लेन चाहिए। Done. That is passing from the intersection of plane pi 1 and pi 2 and perpendicular to another plane pi 4. So now equation of pi 1 and pi 2 लिखते हैं. They are given in Cartesian form. So equation of plane pi 1 का equation दिया हुआ है. It's a x plus y plus z equal to 1. So minus 1 equal to 0. Equation of plane pi 2, that is 2x plus 3y. 2x plus 3y plus 4z minus 5 equal to 5, so minus 5 equal to 0. Done. This is pi 1 and pi 2. So what is the equation of plane pi 3? Equation of plane pi 3 will be equation of plane passing from the intersection of these 2 points. So equation of pi 3 डायरेक्ट लिख पाएंगे, है ना, ये कौन सा फॉर्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, है ना, d एक कांस्टेंट है, दैट इज नॉट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये d1 को हम इस साइड लेंगे तो माइनस d1 होगा, और इसको हम प्लस फिर से प्लस कर देंगे तो एक कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए मैंने वो साइन चेंज नहीं की। ये 2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, है ना। नॉर्मल इक्वेशन में हम इसको सामने d1 करके लिखते हैं, इसको मैंने इस साइड ले लिया, फिर भी मैंने प्लस ही रखा क्योंकि एक कांस्टेंट है, तो उसको आप कोई भी साइन ले सकते हो। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, ये दोनों के इंटरसेक्शन में से पास होने वाला, तो क्या होगा, इट्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लेमडा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया। सिंप्लीफाई करो। सो व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन, इट्स 1 प्लस 2 लेमडा x, 1 प्लस 2 लेमडा x प्लस 1 प्लस 3 लेमडा y, 1 प्लस 3 लेमडा y प्लस ये 1 प्लस 4 लेमडा z इक्वल टू, है ना, ये होगा माइनस 1 है ना, मैं वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो हियर दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ r डॉट n इक्वल टू d1 plus d2 form. So this is nothing but the normal vector, this resultant plane, no, that is our pi 3. So that is r dot n3. So can we say this one as a n3 normal vector? This will be the normal vector of this resultant plane. It is passing from the intersection of two planes. Done. That is equal to 1 plus 2 lambda I plus 1 plus 3 lambda j plus 1 plus 4 lambda k. This is the normal vector of this plane 3, है ना, n3. Is that clear? n3 डिराइव कर लिया, से रिजल्ट नंबर 2 बोलो क्योंकि ये रिजल्ट नंबर 1 हमारा प्लेन था। क्लियर नाउ यहां तक? Also we are given one plane that is perpendicular to our plane pi 3, तो pi 4 का इक्वेशन दिया हुआ है। So what is this equation? That equation is equation of plane pi 4. pi 4 का इक्वेशन है, that is x minus y plus z equal to 0. Done. So this is nothing but the r dot I minus j plus k equal to
D. So here our n4 normal vector n4 is I minus j plus k. ये हमारा n4 हो गया. Say this one is a result number 3. ये क्लियर हुआ. ये n4 कौन सा आया? That is for the vector the n4 is the normal vector for the plane 4 n4 है ना. पाई 4 जो प्लेन है ना उसका नॉर्मल वेक्टर n4 आया. डन. अभी बोलो ये n3 और n4 के बीच में क्या रिलेशन होगा? ये n3 ऐसे परपेंडिकुलर है, n4 ऐसे परपेंडिकुलर है और इट इज गिवन है ना. और रिजल्टेंट प्लेन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वन प्लेन पाई 4. सो इसके नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे. n3 and n4 will be perpendicular to each other. Yes or no? So if they are perpendicular to each other क्या होगा? n3 परपेंडिकुलर टू n4. तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी. यस, डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे है ना. देयरफॉर n3 विल बी 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के. ये हो गया हमारा n3 और इसकी डॉट प्रोडक्ट n4 के साथ. n4 हमने डिराइव किया था i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 0. तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो गई. इसको सॉल्यूशन करेंगे ना तो हमें मिलेगा लैम्डा, हमारा लैम्डा. तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ है ना. तो क्या होगा? इट्स अ 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1. इट्स अ 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 माइनस है ना ये -1. इट्स अ 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0. यहाँ पर आपको मिलेगा लैम्डा इक्वल टू है ना 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा 2 लैम्डा. सो 3 लैम्डा इक्वल टू 1. ये 1 सामने जाएगा तो -1. सो लैम्डा इक्वल टू -1/3. लैम्डा की वैल्यू मिल गई. पुट द इक्वेशन ऑफ दिस लैम्डा, पुट द वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा इन अवर इक्वेशन है ना. इक्वेशन 1 में पुट कर दे. ये था ना इक्वेशन 1, देखो यहाँ दिख रहा है. यहाँ पर पुट करें तो क्या होगा? पुट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या होगा? दिस विल बी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लैम्डा. लैम्डा क्या है हमारा? -1/3. सो लैम्डा इज -1/3 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करो. वी आर गेटिंग अवर फाइनल आंसर. तो फाइनल आंसर डिराइव कर देते हैं. तो ये हो गया 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0. So 3x minus 2x, x 3y minus 3y 0 हो गया. 3z minus 4z, it's a minus z minus 3 plus 5 plus 2 equal to 0. This is the equation of required plane. ये आपका आंसर. डन. तो ये था हम सब का क्वेश्चन नंबर 11. तो बोलो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे सबको. क्वेश्चन नंबर 12 है ना, आप खुद से कर सकते हो. देखो किसी को ट्राई करना हो ना तो एक बार आप ट्राई करना है. फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स व्हिच वेक्टर इक्वेशंस आर. एक वेक्टर इक्वेशन दे दिए तो इस पर से आपको n1 और n2 मिल जाएगा है ना. द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म. इट्स r डॉट n1 है ना, नॉर्मल वेक्टर फॉर प्लेन 1 एंड नॉर्मल वेक्टर फॉर प्लेन 2 मिलेगा. तो दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है. सो वेक्टर बिटवीन दी एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और एंगल मिलेगा. कोई बात नहीं, कर लेंगे है ना. क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे और कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. डन. और एग्जाम के अंदर आपको पूरा सिलेबस करना है ना, पूरा सिलेबस
जो बोर्ड वाला आया है वो नहीं आएगा, आपको पूरा सिलेबस करना है। बोर्ड की एग्जाम आएगी तब आपको वो सिलेबस कंसिडर करना है, अभी आपको पूरा सिलेबस करना है।